everyone, my name is Khushbu Arora. I am your host, and today we are going to have a discussion about business growth and leadership with Mr. Saurabh Bhardwaj. Some of you who are new here might not know about Expertify now. It is a consultant hiring app where you can find expert guidance from one of the top industry experts. Now, without any further ado, let's get started. Good evening, sir. Please, can you introduce yourself? Hello, everyone. My name is Saurabh Bhardwaj. I'll give my little background. I have been working in IT industry for 21 plus years. Left recently, and and now I'm a coach. I'm working as a coach. I'm helping with mindset, business, and relationship coaching. Working in this industry for more than 7 years now. My expertise are more into the business and mindset and leadership. Yeah. Over to you, Khushbu. Okay, so let's start. Absolutely. So today, what we want to discuss about is business, right? So first of all, do we understand the business? What is the meaning of business? So there are different kind of models available in the market. One is um, let's start with Robert Kiyosaki. He's one of the top economists in the world, and he has created a definition of employee, self-employment, business, and investors. So there are four quadrants. Right? So people who are working for others, they are unemployed. A lot of people who have started their own business or let's say shop or small businesses, uh, they also call themselves as business. Third category is real businesses, where there are people who are working for someone. Means in my business, there are a couple of people who are working for me, and I'm free to do other things. Fourth quadrant is invest as an investor. So the goal is to become an investor, not into the self-employment or business mostly. So what is business and what not is business? Business where you have people working for you and you're mostly busy taking care of your business. More than 20, every day. Do we call it do we call it as a business? No. Self-employment thing. Even it is job is little better than self-employment. We work for certain hours, we get weekly offs, and then we get leaves, yearly leaves, and other benefits. But in self-employment, we are stuck taking care of everything by ourselves. So we need to understand: are we really doing a business? This definition must be clear to every one of us. And what is business? What is the purpose of business? Next thing is what is business now? What is business? Where we have ample time available to ourselves, our families, and our things which we want to achieve in our life. Many of us are doing that right now. I think very few people. Very few. And what is the purpose of business? Put our life goals, not to chase the money. People would say that if we are doing business, that means we need to earn a lot of it. Absolutely, yes, that's required. That's why we are doing it. But is that the end of the basic thing we are doing business for? No. We start a business to complete a goal or having a vision in mind which we want to achieve. So, do we have that clarity of vision and mission? So, what do you mean by vision or mission? Do we have any idea already, Khushbu? I think it I would be would better. love to interact more with the Yes, audience. yes, yes. Just The audience would not be able to interact with you. That's the thing. They are, okay, yeah, they could put up some questions. absolutely. Yes, but other than that, they would not be able to interact It's okay. directly. जी, जी.
what is the vision and what is the mission? So whenever we start a business, there must be a vision and a mission as well. So what is vision? Like, what is my vision? When I left my job, I worked in the industry for 21 plus years, and then I left the job and started the coaching as a full-fledged business. So what was my vision? मुझे financial freedom achieve करना था completely. In job, it is not possible for sure, right? And then I needed a time freedom as well. So financial freedom ka, what would I do with that? I have money, but I do not have time. And in jobs, sometimes we can say we have some time available, but no money. In self-employment, we do not have time, still do not have enough money in most of the cases. So my vision was to become financially free and complete time freedom. Right? And there are different kind of visions. I mean, the duration of the vision are different. First, there is short-term vision, mid-term vision, and long-term vision. So let me ask this question to you, Khushbu. What do you mean by, can you define a short-term vision, a short-term goal? What should be the duration of it? I think it should be between like 2 years, if I'm not wrong, 2 to 3 years. Absolutely. Yes. Mostly people make a mistake here. People think short-term goals are one year, 1 month, 3 months. No, short-term goals are 5 to 10 years. Okay. Right? And now people might say कि 5 to 10 years है बहुत बड़ा टाइम हो गया. Definitely. Right? But look Yes. back. अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे इस कोरोना टाइम में 5 years कहाँ गए? You'll find कि it was just yesterday. And 5 साल जा चुके हैं हमारी लाइफ से. Similarly, if you go back. जी. Then long term कितना कैसा होगा? Long term vision, what would that be? Then mid-term goals are 10 to 20 years. And long terms are 20 plus years, 20 years, 40 years, 50 years, 100 years. Scientists are working on projects which will take 500 years. Okay. What they would do, they would pass on the legacy to someone else. Those are the vision. तो अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारा गोल क्या है? कि हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेगेसी बिल्ड करनी है. I'm sure a lot of people would want to create a legacy. उसका गोल क्या होगा? Of course. Could you hear me, Khushbu? I can now. Yes. Okay. Sorry to disturb. Hanji, please continue. So legacy. We're talking about the legacy. A lot of people want to create a legacy. A legacy create करने में 10 years या 20 years नहीं, सदियां लग जाती हैं. टाटा ने ये लेगेसी क्रिएट करी, अंबानी ने लेगेसी क्रिएट करी. Generations. अगर हम generations, तो अगर फोकस लेगेसी क्रिएट करने पर होगा तो जो बिजनेस का मॉडल होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं. एंड पहले अपना विजन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अगर विजन क्लियर नहीं है तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा. अगर हम डे टू डे स्टेप में फंसे रहेंगे कि आज बस आज का ब्रेड एंड बटर हो जाए, या मंथली रेवेन्यू निकल आया, वीकली निकल आया, तो व्हाट वुड हैपन? नथिंग. वी विल बी स्टक इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. And this is one of the biggest mistakes people are doing it right now. They do not envision for 20 plus years. And this is the basic reason why more than 95% of businesses are failing every year. You would hear that बहुत सारे startups आ रहे हैं, और within first year more than 90% startups are gone. Next 3 years के अंदर, next 5 years, 3 to 5 years के अंदर, what would happen? Rest of the 4% or 7% जो business they're gone. Only 1 or 2% business will survive after that, after 5 years. Why? Because they have a vision, they have a mission. Clear vision है उनका. They know it will take time, it will take 5-10 years at least to start the business. Patience. बहुत सारे लोगों ने कोरोना के अंदर, कोरोना टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए कि चलो टाइम अवेलेबल है, या मजबूरी थी, जॉब नहीं थी, या बिजनेस का मॉडल चेंज हो रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ हुआ, दे स्टार्टेड. उसके और अचानक क्या हुआ, आज तो स्टार्टअप्स आर गॉन. इवन कोचिंग में बहुत बड़ा बूम आया था इस सेक्टर में उस टाइम पर. आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल वर बिकमिंग कोचेस ड्यूरिंग कोरोना. After And I'm nowhere. Hanji. I'm not able to find them anywhere anymore. They're gone. बहुत गिने चुने ही रह जाते हैं.
हार्डली 1 to 2%, दैट्स इट। रेशियो हमेशा से यही रही है, इससे ज्यादा कभी नहीं होती, मैक्सिमम 3%। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ नो विजन। हमारा विजन अगर क्लियर नहीं है, वी कैन नॉट मूव ऑन। Vision is important. वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, एसोसिएशंस, ये बहुत क्रिटिकल है। You want to become a doctor, want to be associated with a doctor, correct? If you want to become a lawyer, you will be associated with lawyer. But when you want to become a business person, or when you want to open a business, whom are we associated with? Mm. Again, the same people which we have been working for, from beginning of our life, बिल्कुल। our relatives, our friends, our circle. और अगर हम अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि वो बिजनेस पर्सन नहीं है, और हमें वो गाइड जरूर करेंगे। हमारे जो एसोसिएशन है, दे गाइड अस। यस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और अच्छी बात इसमें ये होती है कि एवरीवन इज एक्सपर्ट। आप उनसे कोई भी राय मांगिए, दे आर एबल टू गिव इट। अंबानी कैसे काम कर रहे हैं, रतन टाटा कैसे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे करना चाहिए, दे नो एवरीथिंग। Yes. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे विल बी एबल टू गाइड यू फॉर श्योर। हाँ, बट वो लेकर कहाँ जाएगा, वो नहीं पता। राइट राइट। इज लाइक कि बी वेरी केयरफुल whom you are associated with। अगर आपको बिजनेस में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद बिजनेस पीपल। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ धीरू भाई अंबानी की, शायद काफी सारे लोगों ने, ऑडियंस ने हमारी सुनी भी होगी। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उनकी सैलरी वाज अराउंड 500 रुपीज अ मंथ। उनका शौक था चाय पीने का, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो बाहर नॉर्मल जो ठेले होते हैं वहां पर चाय नहीं पीते थे, यूज्ड टू गो टू अ 5 स्टार होटल। बाहर चाय मिलती थी 50 पैसे की, एंड ही यूज्ड टू गो टू दैट 5 स्टार होटल, वहां पर जो चाय का प्राइस था 5 रुपीज था। एंड व्हाट वुड हैपन नाउ, जो उनका सर्कल है, व्हाट वुड दे गाइड हिम, टेल हिम, कमेंट ऑन हिम, ये क्या शो ऑफ कर रहे हो, है ना, ये 50 पैसे चाय मिलते, तुम्हें 5 रुपए क्यों वेस्ट करने, 500 रुपए कमाते हो, क्यों इतना तुम्हें खाना अपना शो ऑफ करना है। तो धीरू भाई ने जो आंसर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। He said कि मैं वहां पर शो ऑफ करने नहीं जाता हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ बिजनेस बिल्ड करने। अब 5 स्टार में कौन आते हैं, सारे उस टाइम भी लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग आते थे, राइट। तो वो 5 रुपए इन्वेस्ट करके उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था, नेटवर्किंग, उनको सिर्फ सुनने का मौका मिलता था। जी एब्सोल्यूट नेटवर्किंग होती थी। हाँ। ही लर्न दोज वेज कि कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड अगेन एक सिंपल सी बात है, अगर इफ आई ईट एन पोटैटो एंड इफ आई वॉमिट, only potato will come out. But if I eat paneer and if I vomit, paneer will come out. So those people ate paneer, cheese, right? Yes. So whenever they speak business. And this is the major issue we are doing right now. So we want to expand our business, we want to scale our business, we want to start our businesses, but what happens, हम guidance किससे ले रहे हैं, हमारे सर्कल से, जो हमारे आसपास है, जिन्होंने बिजनेस कभी किया नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने कर करके छोड़ दिया है। हमें सब पता है, हमने कर करके छोड़ दिया है। दैट इज द प्रॉब्लम, तुमने करके छोड़ दिया है, इसीलिए तुम वापस वही हो। एंड नाउ वी आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देम, और अगर इवन वी आर नॉट टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देम, एटलीस्ट वी आर हियरिंग देम। और कहते हैं जो सबसे बड़ा जहर होता है ना, वो कानों के थ्रू जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू है कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं। कि अगर मुझे अभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम पड़ोस की बातें कम सुनेंगे, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, एक्सपर्ट की बात सुनेंगे, जो डॉक्टर कहेगा वही करेंगे, फिर हम किसी के नहीं सुनने वाले। वहां पे लाखों रुपए भी मिल पे, और बच्चे को बचाने के लिए बिल्कुल सिर्फ वही सुनेंगे जो डॉक्टर कह रहा है, किसी की नहीं मानेंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, बिजनेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें वो लाइफ के वो गोल्डन टाइम अवेलेबल करा सकता है, जिसके हम पता नहीं कब से कल्पना कर रहे हैं। when we were born, so I was born in 80s, so उस टाइम पर वो ही मैन आया करता था, स्पाइडरमैन काफी बाद में शुरू हुआ था। तो बचपन में 4-5 साल एज में देखना शुरू किया, एक ही टीवी हुआ करता था मोहल्ले में उस वक्त, तो ही मैन देखने लगता था, बड़े होकर हम ही मैन बनेंगे, ठीक है। थोड़े से बड़े हुए, स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद वहां पर थोड़ा सा और उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, तो पता लगा कि फादर साहब चाहते डॉक्टर बने, तो आज की नहीं, अब हम डॉक्टर बनेंगे। 12th के बाद जब PMT के एग्जाम्स हुए और समहाउ वो क्लियर भी हो गए,
somehow ही कहता हूँ क्योंकि कभी इंटरेस्ट हुआ, उसका इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ, कंप्यूटर से थोड़ी मोहब्बत हो गई थी तो आईटी में चले गए। तो आईटी कंप्लीट करते करते 3-4 ईयर्स के बाद लगा कि बस कहीं जॉब मिल जाए। तो हीमैन से जॉब मिलने तक का जो सफर था ना, तो इट वाज नॉट अप ट्रेंड, इट वाज अ डाउन ट्रेंड। Yes. एंड थैंक्स टू आवर सराउंडिंग, थैंक्स टू आवर एसोसिएशन, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबके साथ होता है कि पैदा तो हम सब ना, देयर इज अ सेइंग, सम सेंट हैज सेड इट, कि मालिक ने इंसान को अपने रूप पे बनाया है, अपनी पूरी ताकत के साथ भेजा हुआ है। बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पर merely we are not able, just surviving here. Why? And the only reason why we are surviving because of our associations. अगर आज की डेट में हम धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी के एसोसिएशन में होते, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस वुड हैव बीन अ बिलियनियर। एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी शराबी के साथ बैठ जाओ, एक महीने के साथ बैठो तो पक्का शराब पीना शुरू कर ही दोगे। तो व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, सबसे पहले इसलिए विजन का होना बहुत ज्यादा क्लियर है कि मेरे को कहाँ जाना है। अगर आपका विजन स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम माय बिजनेस, तो होगा क्या, वो जो एसोसिएशन है जो आपको ब्रिंगिंग डाउन, आप उनको छोड़ पाओगे बहुत इजीली। आपका फोकस क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। और 97% लोगों के पास ऑन दिस अर्थ, दे डू नॉट हैव अ विजन, दे डू नॉट हैव अ विजन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्लेव्स। दे ऑल आर डूइंग नौकरी। नौकरी क्यों इन्वेंट हुई थी? अगर 200 साल पहले या 100 साल पहले आप जाओगे, 200 साल पहले ऑफ कोर्स यहाँ पे नौकरी को, देयर वाज नो नौकरी, everyone was an entrepreneur, most of us was entrepreneurs, right? अब हर कोई, पूरी दुनिया में हर कोई, they want to become a नौकर, an employee। कुछ कुछ लोग होते हैं जो से बाहर निकलते, स्ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, बट दे एंड अप गेटिंग इनटू अ बिगर ट्रैप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अब उन्हें सब कुछ खुद ही करना है, उन्हें मार्केटिंग भी खुद करना है, उन्हें डे टू डे भी खुद देखना है, उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर हैंडलिंग सब कुछ खुद करना है। अब उनके पास एक दिन भी छुट्टी का नहीं। एंड मजे की बात है कि हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है। देन व्हाई? उसका पर्पस ही क्या है बिजनेस का? if we don't have time for ourselves, our own health, we don't have time. People are most of the people on this earth, they die at 30 to be waiting to be buried or burnt at 60. That's it. उनके 30 एज तक आते हैं तो उनके विजन खत्म हो चुके होते हैं, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो चुकी होती है, उनको ऑलमोस्ट आधी ज्यादा बीमारियां हो चुकी होती हैं, राइट? और उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। टाइम ही नहीं है तो फिर करना क्या इस लाइफ का? यू डोंट हैव टाइम फॉर योर ओन लाइफ। अपने शौक पूरे करने का टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, कुछ नया अचीव करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नया इन्वेंट करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं बचा। वी आर इन द ट्रैप 24/7, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में आ गए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से निकलने का क्या तरीका है? इज देयर अ वे? यस, देयर आर वेज, बट बिफोर दैट वी नीड टू स्टॉप डूइंग 7 मेजर मिस्टेक्स। So let's discuss those mistakes. These are very important. इससे पहले मैं वो start करूँ, are there any questions from audience? Yes, there are many questions, I would say. Okay. Somebody have asked me ki, what is the best investment I can do below 50,000? Investment below 50,000. Again, what is? There are so many investments which are available. The stock market is a great platform, but 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको कितने दिन के लिए करनी है? आपको अचीव क्या करना है? डेली इनकम जनरेट करनी है, या आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है, ईयरली करनी है, या लेगेसी क्रिएट करनी है? So if you can forget about these 50,000 rupees for 5 years, invest in good stocks. Okay? और इन्वेस्टमेंट के अलावा बहुत कुछ है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है? सिर्फ मनी इन्वेस्ट करना है कि टाइम भी इन्वेस्ट करना है, लर्निंग भी पे भी इन्वेस्ट करना है, खुद की ग्रोथ पे भी काम करना है? So you can start small. Direct selling is one of the business model right now, which is uptrend in trend in the market. You can learn a lot, or you can learn the business strategy from there. But yeah, it's not for everyone. But yeah, for beginners, I would suggest they should do it. So they will understand the business strategies. Even life के गोल भी बहुत तेजी से क्लियर होंगे, right? So अगर below 50,000 है तो of course you can go for long term investment or debt selling. Even you can start
indirect selling industry without money at all. But yeah, you will learn to network. You will learn how to set goals. You will learn how to envision how to set bigger goals. So at least invest 1 year in that selling industry. You'll come out as means a shining kind of a shining star if you are just starting your life. Okay. Okay, somebody asked, what was your biggest early challenges business के time पे? वही challenges हम 7 challenges में बात करने वाले हैं. चलो, someone has asked that question. We'll It's a good start. It's a good Yes. start. Thank you very much, whosoever asked this question. Oh, I would love to hear the names as well, if you can, Khushbu. Can थोड़ा नीचे करना है? It was by Jyoti. Thanks, Jyoti, for asking that question. So, biggest mistakes I did myself and most of us are still doing. First, selling reactively. Say again? Selling reactively. Okay. Before that, there is one more thing, niche. कि हमारा niche clear है. What product or services are we selling? How are we selling it? Right? ये important है. रोज हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो उससे बहुत अच्छा है कि whenever we start any business, research is very important. Before we actually get into your business, do thorough research, and research is free. उसमें आपको चवन्नी भी नहीं लगने वाली. Google is free. Google पर सब कुछ आपको मिलता है. कोरा पे आपको सब कुछ मिलता है. वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ग्रुप हैं जो फेसबुक पर हैं, अवेलेबल हैं, कोरा पर हैं. आप जाइए, ज्वाइन करिए एंड लर्न. अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च करिए. एटलीस्ट गिव 6 months, a year time, an hour a day. And let me tell you, एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है पर डे? Not more than 2-3 hours. That's it. That's all we need. And बिजनेस की एक प्योर डेफिनेशन है. अगर हम सब मूवी देखते हैं, कुछ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. हम सब मूवी देखते हैं, जितने भी हमें दिखाते हैं जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनको हमें दिखाते हैं, काम करता हुआ दिखाते हैं, तो उनको कहाँ दिखाते हैं कि वेयर दे आर वर्किंग इन ऑफिसेज मोस्टली, राइट? जितने भी बिग बिजनेस बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनको कहाँ दिखाते हैं? वेयर दे आर वर्किंग मोस्टली big offices. Not even, yeah. But they only sometimes get into their offices. They are seen in hotels. They are seen in they are seen in golf clubs. They are seen in horse club, right? Doing golfing and all. Right. So do you think कि वहाँ पर बिजनेस नहीं खेल रहे हो? No, golfing पर ही बिजनेस कर रहे हैं. वो जब हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, वो तभी बिजनेस कर रहे हैं. उनका बिजनेस मॉडल वही है. So अगर हम ऑफिस के अंदर बैठकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, इट विल नॉट बी अ बिजनेस. इट विल नेवर कैन बी अ बिजनेस. इट विल बी अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंग. चाहे आपकी कंपनी ट्रिलियंस की हो जाए. सो अगर हम अपने टाइम को फ्री कर सकते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम अपने टाइम को एंजॉय करते हुए बिजनेस कर रहे हैं, जब वो मोमेंट आ जाए कि वट एवर वी आर डूइंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू बिजनेस. तो विजन को हमें स्टार्ट हमेशा क्या होता है? व्हाट इज द विजन स्टेटमेंट एंड हाउ शुड वी सेट आवर विजन? ऑलवेज स्टार्ट बिगिनिंग एंड इन द माइंड. पहले हमको उस स्टेट पर जाना होता है कि हाँ, मुझे ये अचीव करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्योति फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी, तो पहले आपका विजन क्या है कि अपने 50 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? आर यू रियली बिग बिजनेस वुमन? किस टाइप का आपका लाइफस्टाइल है? किस टाइप की आप सर्विंग कर रहे हो? और बिजनेस का मेन पर्पज होता है सर्विंग. It's not just about me or a business person. It is about serving. How are we serving to the people? Ratan Tata's, Ambani's, they are serving a lot. That is why they're big brands. Right? So first, जो हमारी mistake होती है, ज्योति, selling reactively. You are waiting for the customers और word of mouth के आने का वेट कर रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं अपना स्टोर खोलकर, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कि कस्टमर विल कम. क्वेरी आएगी, हमने वर्ड ऑफ माउथ कर दिया, थोड़ा बहुत फेसबुक पे इंटरेक्शन कर दिया है, और हमने वी हायर टीम्स जो हुआ टेकिंग केयर ऑफ आवर डे टू डे बिजनेस मार्केटिंग थिंग्स. उसमें इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रियली नीड बिग इन्वेस्टमेंट्स. वी नीड रियली गुड टैलेंट्स. Just do not hire anybody for the sake of hiring. Otherwise, you will be end up paying money, salaries, and doing everything on your own.
That's the biggest mistake, right? Self-proactively, आपका जो product है, is it reaching out to people every day, every week, every month? That's important. They must see your product. Right? पहले होगा ना कि आप सड़क से जा रहे हैं तो बाहर बैनर लगा हुआ है या कोई फ्लायर्स बट रहे हैं या बाहर खड़ा होकर जोकर आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है. नथिंग हैज चेंज इन डिजिटल एरा. इट जस्ट क्यों सब कुछ डिजिटल हो गया. तो हमें इसको सिर्फ समझने की जरूरत है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं है. स्ट्रेटजीज आर सेम. मॉडल है चेंज कि पहले लोग घर से बाहर निकल के आना पड़ता था, तब आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है या आपको फ्लैश घर पे पहुंचाने पड़ रहे थे. अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम उनके फोन में उस सेम चीज को पहुंचा रहे हैं. बस इतना ही फर्क आया. प्लेटफॉर्म चेंज हुआ. सम एवरीथिंग हैज सेम. ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिजनेस में लोग कहेंगे बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, बट मेरा मानना है इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए. जो ट्रेडिशनली हम ऑफलाइन कर रहे थे अब हम वो ऑनलाइन कर रहे हैं. इतना ही चेंज हुआ है. एंड वी आर रीचिंग आउट टू द पीपल. बेसिकली मीडियम चेंज हुआ है बस. मीडियम चेंज हुआ है. द बिगेस्ट मिस्टेक मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ. ओनर इज डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन. वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए. अपने बिजनेस में दे आर हायर्ड एज एन एम्प्लॉय. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है, what is the purpose of business? And can I do everything? Can I take care of product quality, procurement, recruitment, HR, customer experiences, and then transportation? Can I take care of everything? No, I cannot. We need team. So we need to hire people, talent, who can take care of these things as an expert. नॉट काम चलाओ वाला नहीं कि कोई भी आ जाए बस ठीक है बिठाना है, वो थोड़ा बहुत काम देख लेगा. ट्रस्ट में आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप उसको सिर्फ सैलरी पे करोगे और वो एक हेल्पर की तरह होगा. मेन रोल आप ही का रह जाएगा. तो अगर आपको चार प्रोडक्ट्स, 4 मार्केटिंग की जरूरत है, 4 रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट, कस्टमर हैंडलिंग करें, तो एटलीस्ट हायर फ्यू पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. ये आपको बहुत लॉन्ग रन में हेल्प करेगा. आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा. We are not expert. Even I cannot take care of my own marketing right now, and I will never take care of it. I have hired teams who are taking care of that. I never ask them what they are doing. I just know they are bringing me the results. I'm happy with that because I cannot just put my mind everywhere. My vision is different. So when I have a clear vision that what I want to achieve, तो मेरा फोकस सिर्फ उसी पर रहना चाहिए. आपको एक विजन देना है अपनी टीम को कि this is what you have, what is expected from you, and why it is important to you, not to me, but to the employer. हमारा विजन स्टेटमेंट और उनका अपना जो विजन स्टेटमेंट अगर वो मैच कर गया या आपने जो गोल उनको दिया है उसके साथ उसका विजन अटैच कर दो, they will be doing it little better than others. Third is lack of systems. अच्छा, बिजनेस में नॉर्मली हम कैसे करते हैं बिजनेस? सब कुछ खुद कर रहे हैं, सब कुछ ऑफलाइन चल रहा है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है या पेपर पर चल रहा है, राइट? अच्छा, व्हाट इज द वर्स्ट प्लेस टू कीप एनीथिंग? The worst place to keep any damn thing in this entire universe is our brains. Never ever keep anything in the brains. ब्रेन का एक पर्पस है. When this whole universe was created, ब्रेन को एक पर्पस दिया गया था, सर्वाइवल. ये आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देगा. इसका फोकस है सिर्फ सर्वाइवल पर. वो कैसे करता है? देयर इज अ स्टडी हैपेंड ऑन इट एंड दे फाउंड आउट कि ब्रेन के अंदर एक दिन के अंदर अराउंड 64,000 थॉट्स आते हैं, out of which 90% are repetitive and negative. Right? So इसका पर्पस है आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड में डालने का. तो डरा के रखेगा, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कल को तूफान ना आ जाए, कस्टमर आना बंद ना कर दे, या कोई आजकल तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाता है, राइट? लेकिन उसमें से 99% जो प्रॉब्लम्स होती है कभी होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में. और अगर आपने कोई भी विजन, कोई भी मिशन, कोई भी गोल अपने दिमाग में रखा हुआ है, ट्रस्ट में वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे, सिर्फ दिमाग में है. तो इसका काम ही है आपको सिर्फ बिजी करता है. ये सिर्फ उतना ही कराएगा जिससे ये कंफर्ट जोन में, कभी भी अनकंफर्टेबल जोन में नहीं आना चाहता. दिमाग का काम है कभी काम नहीं करना चाहता.
लेजिएस्ट एस इन दिस यूनिवर्स इज ब्रेन। आपको कुछ भी तो वो नहीं करेगा, उस टाइम पे 1000 चीज बताएगा, यार इसको हम कल कर लेंगे ना, चलो आज मूवी देख लेते हैं, चलो सो जाते हैं, आधा घंटा सो जाते, उसके बाद करेंगे। और अगर आपको अच्छी नींद चाहिए हो तो आप अपने सामने कोई एक बड़ा गोल रख दो, ये आज ही करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद दिमाग बोले चलो आधा घंटे का रेस्ट ले लो, आपको उस दिन सबसे बेहतरीन नींद आएगी। अगले 4-5 घंटे आप ऐसे सोओगे कुंभकर्ण की तरह, कुछ होश नहीं होगा, फैक्ट्स। राइट। तो बिल्कुल। ये काम नहीं करना चाहता। तो देयर इज ए लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सिर्फ क्या करता है, हम वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट वाइब्रेशंस पे। तो जिस वाइब्रेशन में हम होता है, अगर हम लोअर वाइब्रेशन में है तो वी आर गरीब, स्ट्रगलिंग। अगर थोड़ी सी हायर वाइब्रेशन में है तो वी आर डूइंग बेटर। अगर हम टॉप वाइब्रेशन में आ जाते तो वी आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग बाय आवर ओन थिंकिंग। वी कैन डू दैट, दैट्स वेरी इजी। सोल्यूशन तो क्या होगा फिर इसका? सॉल्यूशन है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाइए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये नहीं है कि पहले मैं कुछ बन जाऊं तभी मैं अपने आप को मानूंगा, नहीं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको फेक करने में प्रॉब्लम करते हैं। तो स्पेशली ऐसे 4-5 जो एसोसिएशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारे क्लोज सर्कल, उसमें कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक रिलेटिव कभी कभार होते हैं। तो आप जो है उन 4-5 लोगों का रिजल्ट हो। तो अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए है, आई कैन, मतलब आपको आपके बारे में जानने के लिए मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना, अपने 4 लोगों के बारे में मुझे बता दीजिए, आई कैन टेल यू हु यू आर। किसी भी इंसान को पहचानने का सबसे आसान तरीका उसके आसपास के लोगों को देख लो, आपको पता लग जाएगा वो क्या है। और सेम अपने लिए भी अप्लाई होता है। अपने आसपास देख लो कि हमारे आसपास किस टाइप के लोग हैं, आपको अपने रिजल्ट मैच करते हुए मिलेंगे हमेशा। अगर आपके आसपास 10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं महीने के, यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 7 to 8 और मे बी 10-15 लाख और 20 लाख। बट अगर लोग एम्प्लॉयज हैं, घरेलू लोग हैं, दे स्ट्रगलिंग, यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग बाय डिफॉल्ट। कुछ लोग कहेंगे भाग्य बहुत बड़ी चीज है, किस्मत, राइट। और किस्मत हो तो हम कुछ भी कर लें। किस्मत ही खराब थी मेरी, तो किस्मत बहुत खराब थी, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मेरा तो बहुत टैलेंट था। बट अगर हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू धर्म में तो बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर कि आप अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। और कर्मों में क्या बदलने, सिर्फ एक छोटा सा कर्म बदलना है, एसोसिएशन चेंज कर दीजिए। अगर आपको रिच बनना है तो अमीर लोगों के साथ बैठना जबरदस्ती शुरू कर दीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे अमीर लोग मिलते हैं, वो आपसे बात ना करें कोई बात नहीं, आप जानबूझ के मौके ढूंढिए बात करने के, सिर्फ बैठिए, उनकी वाइब्रेशंस में आएंगे तो अपने आप ही आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और देखो सीधी सी बात है, दिमाग पर असर करता है जो चीज हम बार बार सुनते हैं ना, देयर इज सेइंग कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। और 90% से ज्यादा प्रोडक्ट जो मार्केट में है इस टाइम, सबको पता है वो आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं, लेकिन वो बिक रहे हैं। और उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, क्यों? रिपीटिशन। वो सारा दिन हमारे सामने आते हैं, तो दिमाग के सामने जो बार बार आती है उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो अपनी रिपीटेशन को बंद करने का सबसे आसान तरीका, अगर इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए कंप्लीटली। फोन पे जितने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सबको बंद कर दीजिए। अगर आपको सीरियसली बिजनेस करना है, अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, बिग ब्रांड्स बनाने हैं, अपने बहुत सारा पैसा कमाना, लाइफ को एंजॉय करना है, तो प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, अदर सोशल डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए अगले 6 महीने के लिए। मैं कोई अगले 10 साल नहीं मांग रहा, सिर्फ 6 महीने के लिए आप कट ऑफ कर दीजिए। और उन एसोसिएशन से भी कट ऑफ कर दीजिए जो आपका रिजल्ट का कारण, एंड यू विल सी अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सनैलिटी। लैक ऑफ सिस्टम्स, डोंट डू एवरीथिंग बाय ऑन योर ओन, सिस्टम्स क्रिएट करिए। इवन सिस्टम्स या प्रोसेसेस ऐसे बनाइए जो फूल प्रूफ प्रोसेसेस हो। फूल प्रूफ मतलब आप उस गधे को उस प्रोसेस में डालें तो ही और शी शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, और आपकी डिपेंडेंसी वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ऐसा है कि एवरीडे वे जाके देख रहे हैं क्या करना है, कैसे करना, कौन क्या करने वाला, आज के क्या प्लान है। आप सिस्टम बनाइए। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको हेल्प कर देती हैं, जैसे आई थिंक ये फीचर आपने स्पॉटिफाई में भी डालना शुरू किया है, आई बिलीव। मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई सॉ समथिंग। बिट्रिक्स इज वन ऑफ द ऐप, वो आपको पूरा सिस्टम बना कर देती है, सर्विस को पूरा सर्विस सेक्टर तक कस्टमर पूरी जर्नी होती है उसके अंदर। तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। एक्सपर्टिफाई, इसके अंदर भी सबसे आसान, सबसे अच्छी चीज है एक्सपर्टिफाई के पास, आपको कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, आई एम जस्ट सिटिंग हियर,
मुझे जो सर्विसेज चाहिए, आई हैव द कोचेस अवेलेबल, द सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल, आई जस्ट क्लिक ऑन द नेम एंड आई जस्ट आस्क फॉर द कोड एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद देम. बाकी सारा काम एक्सपर्टिफाई, एडमिन वाला पूरा काम एक्सपर्टिफाई ले रहा है. तो मेरा 100% लोड इज गॉन. कोई डिस्प्यूट्स है, एक्सपर्टिफाई विल टेक केयर ऑफ इट. Yes. राइट. इट्स नॉट मी कि मैं और आप एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. तो दैट्स इम्पोर्टेंट. इस टाइप के प्रोसेस है, ये सिस्टम है. दैट्स व्हाई आई लव वर्किंग विद एक्सपर्टिफाई. जस्ट गिव मी अ मिनट. जी, थैंक यू सर. Team. Another one is team. What is our team's structure? किस टाइप के लोग, टैलेंट हायरिंग कैसी है, वो मैं ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट. Never ever hire people who are incompetent, or you're just hiring for the sake of hiring. If they are not experts in their field, do not hire them. They will do you more bad than any good. This is very important. For the best talent, जो बेस्ट टैलेंट होगा, आपको इनिशियली लगेगा कि थोड़ा ज्यादा मांग रहा है. इन सिंपल वर्ड्स, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम 3 महीने अफोर्ड कर पाएंगे, 6 महीने अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. सारा फोकस यहीं पे आकर अटक जाता है. बट ट्रस्ट में, अगर आपने 6 महीने इसको अफोर्ड कर लिया, आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो हेल्प, जब हम हेल्प की बात करते हैं, तो वी आर नॉट हायरिंग हेल्प, वी आर हायरिंग एक्सपर्ट्स. क्योंकि अगर हमें हेल्प की क्यों जरूरत है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू इट and we do not have time to learn it. And most of the business people and self-employment people, what they do, they try to learn everything. Okay, I'll do it myself. And what would happen next? सबके पास अगर हम हर चीज में talented हो जाएंगे, तो what would happen? हम कुछ भी, जब when we know everything, we know nothing. We know nothing, बिल्कुल. We know nothing. Yes. And knowing से ज्यादा important है doing. Can we do everything our own self? Nope. इनमें 8 घंटे अगर बिजनेस या 10 घंटे 12 घंटे भी लगा, तो 12 घंटे के अंदर आप क्या क्या मैनेज कर, HR फंक्शन, इवन इफ दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम, तब भी सब कुछ मैनेज करना खुद से इट्स नॉट इजी, नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल. तो सब कुछ हम खुद कर ही नहीं सकते. तो वी नीड कोर टीम. मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आप ले लो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द कोर टीम. ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग जिनका विजन आपसे मैच करता हो और दे आर एक्सपर्ट इन दैट देयर फील्ड. That's a good thing. Somebody have actually asked कि how do you build trust with your team? Very important. इसके लिए पूरा लीडरशिप का मैंने एक बुक भी लिखा है. I can share it with you. Do share it. आप Expertify में भी शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया. I'll do that. Absolutely. But yeah, trust. This is a very important question. Who asked this question, please? It was by Moin Badlami. Moin. Yes. Okay, Moin Badlami. Thanks for asking this question, Moin. How do we build trust in teams? How do we build trust in family? How do we build trust in relationships? How do we build trust with our partner? Time. And doing the right thing. हमें पता नहीं ये कहाँ से ये लर्निंग्स मिली है, कहीं ना कहीं से मिली है और बिल्कुल रॉन्ग मिली है कि घर का माहौल अलग है, ऑफिस का माहौल अलग है, बाकी सबका माहौल अलग है. नहीं, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. आई एम सेम एवरीवेयर. मैं ही जा रहा हूँ, उसी दिमाग के साथ जा रहा हूँ. तो टीम में जिन लोगों के साथ, देखो मोस्टली टाइम हम कहाँ बिताते हैं? सबसे ज्यादा टाइम पर डे अगर हम कहीं बिताते हैं, वो हम ऑफिस में बिताते हैं, अपने ऑफिस में या किसी और के ऑफिस में, राइट? और वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. या फिर घर पर तो फिर भी कमरा लेकर बैठ सकते हैं कि हम ऑफिस में कोई नहीं आएगा, मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, या पार्क में जाके बैठ के घूमने चले गए दोस्तों के साथ, थोड़ा टाइम हम कर सकते हैं. लेकिन ऑफिस के अंदर 8 से 10 घंटे पर डे, चाहे वो आपका अपना ऑफिस है चाहे आप जॉब में, उन्हीं लोगों को रोज देखना है और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप वहीं खराब होते हैं. वी आर कंपीटिंग विद देम. तो इसलिए मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, मोइन. इट वाज 12th का टाइम था. 12th में आई वाज केमिस्ट्री के ट्यूशन चल रहे थे हमारे. तो मेरे जो ट्यूटर थे समीर शर्मा जी, हम 5 लड़के थे, 5 उनका ट्यूशन पढ़ते थे. और वहां पर काफी डिस्कशन चलते रहते थे. एक दिन एक लड़के ने अचानक से बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं शायद भूल गया, कि मैं सिर्फ नॉर्मल सा अनपढ़ सा ही लड़का था, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि 90% पास ले रहा था. बट उनमें से एक ने बोला कि अगर मुझे कम्पीट करना हो तो मैं सौरभ के साथ कम्पीट करूंगा. आई वाज लाइक टेकन अबैक. व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग?
मुझे खुद नहीं आता कुछ भी राइट, बट बिफोर आई कुड आंसर इट और मैं कुड रिएक्ट, क्यों मैं सीरियसली आई वाज स्टन्ड कि ये बोल क्या रहा, मेरा दोस्त है ये मेरे से कम्पीट करने की बात कर रहा है, मैं क्या आंसर दूं। इमीडिएटली जो जो हमारे कोच थे, ट्यूशन ट्यूटर थे, उन्होंने एक बात बोली बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, अगर आपको कंपटीशन करना है, यू ऑलवेज compete with the person who is at the top in the entire world, मोहल्ले में नहीं। कि अगर तुम एटलीस्ट सितारों पे टारगेट करोगे तो चांद तक तो पहुंच जाओगे। अब तुमने क्या करा, इस अपने ही दोस्तों में कंपटीशन शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स पहली बात तो वो तुम्हारे आसपास ही है, तो कंपटीशन का कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों एक ही लेवल पे हो, बस प्लस माइनस वन 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 या जीरो है, तो यू विल डिटेरियोरेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होगा, यू विल एंड अप नोवेयर, अपनी दोस्ती भी खत्म कर दोगे। तो अगर कुछ भी अच्छा करना है तो पहले तो जो compete करना है तो ऑफिस के एनवायरनमेंट में कभी compete मत करिए, अपने आसपास के लोगों से compete मत करिए। अगर करना तो देयर आर अदर पीपल, मार्क जुकरबर्ग है compete करने के लिए, देयर इज अनदर गाय जो गूगल का सीईओ है, उसने गूगल का अभी तो छोड़ दिया। CEO, I हाँ, have to search. ही इज अर्निंग आई थिंक 300 crores plus monthly income. A lot of people must be knowing his name. सुंदर पिचाई, रिमेंबर राइट। एंड अगर कॉम्पीट करना तो उससे करिए, अपने आसपास मत करिए। तो हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं आप, बिल्ड ट्रस्ट, पावर ऑफ अप्रिशिएशन। हम क्या करते हैं, हमको ना एक बड़ी अच्छी आदत है, क्रिटिसाइज करना हमको बहुत जबरदस्त आता है। तो एक सिंपल मंत्र आपको बता देता हूँ, कभी भी क्रिटिसाइज करना हो, पहली बात तो किसी पर्सन को क्रिटिसाइज मत करिए, उस एक्ट को क्रिटिसाइज करिए। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचिए, कभी भी पब्लिकली क्रिटिसाइज मत करिए। अप्रिशिएट पब्लिकली करना है, Hmm. जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे पब्लिकली, पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग। सबको अप्रिशिएशन चाहिए, बट हम उल्टा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पब्लिक में और अप्रिशिएशन करते हैं अकेले में, और वो भी वो थोड़ा सा। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अप्रिशिएट करना। तो अगर आपको चाहते हो कि आपकी टीम बहुत स्ट्रांग बने, जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट कर सकते हो लोगों को करिए। और जब भी क्रिटिसाइज करना हो उसको अलग ले जाइए, अलग कॉन्फ्रेंस रूम में, जो जहाँ पे सिंगल बात हो सके, और सैंडविच फीडबैक का यूज करें, सैंडविच फीडबैक अप्रोच यूज करिए। स्टार्ट विद हिज और हर गुड थिंग्स, कि हाउ दे वर डूइंग बेटर आज, या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या गलत हुआ है, नॉट अबाउट हिम और हर, इट्स अबाउट द इंसिडेंट कि क्या सही है गलत हुआ है। उसका सॉल्यूशन निकालिए, डिस्कस करिए क्यों हुआ और हम क्या कर सकते हैं। और जब वो डिस्कशन होता है, ऑलवेज एंड यूजिंग द पॉजिटिव feedback. I know how we can do it together well. We have been doing it for a couple of months, couple of years, and I have so much trust in you. You have full trust in you. We'll do it better again. So this sandwich approach would definitely will help you. इसके ऊपर सर, बहुत सारी चीजें yeah, हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैं आपको बस एक रिमाइंडर देना चाहती थी। वी ओनली हैव 10 मिनट्स लेफ्ट विद द सेशन। exactly. यस, सो So आप, I'll just take हाँ जी, बहुत तेजी से करते हैं। बिल्डिंग अ ब्रांड, पीपल वुड थिंक कि जब हमारा ब्रांड बहुत, कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, बिजनेस ग्रो हो जाए, तब हम ब्रांड बनाएंगे। नहीं, डू इट नाउ। यू मस्ट हैव योर टैगलाइन एंड ब्रांड रेडी एवरी डे। टेक्नोलॉजी बहुत शार्पली मूव कर रही है, बहुत तेजी से। आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ एक दिन में पहुंच सकते हैं। तो व्हाई वेटिंग ऑन ब्रांड बिल्डिंग, ऑल ऑफ अस मस्ट हैव अ ब्रांड। माइन इज राइज एंड लीड, व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज योर टैगलाइन। टैगलाइन बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट करते हैं। अपने अपने बिजनेस की टैगलाइन बनाइए, मेस्मराइजिंग सी, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव से थोड़ा अवॉइड करना। वो काम करते हैं बट ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं जाते। पॉजिटिव पर काम करिए। एंड स्केलेबल मॉडल हमने बात कर लिया, एंड गोल हमने बात, विजन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। आज मैंने 4 घंटे काम किया, अगले दिन छोड़ो यार, कल कर लेंगे। आधा घंटा काम कर लेंगे, बैठ जाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी जो साथ वाला बिजनेस वाला, उसका गप्पे मार ली, चलो आज ड्रिंक्स ले लेते हैं, या थोड़ा कम काम करते हैं, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। 12 घंटे या 8 घंटे में पूरे करने अपने बिजनेस में। इतने स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आया क्या करें, तो हमने छोड़ बंद कर दिया। तो इसीलिए सिस्टम की जरूरत है। अपने टाइम को डिवाइड करिए ऑफिस में, जब भी जहां भी आप काम करें उसमें टाइम को डिवाइड, इतने टाइम पर हम ये काम करेंगे, इस टाइम पर एचआर का रोल है, इस टाइम पर कस्टमर का रोल है, कस्टमर एक्सपीरियंस देखना है, कस्टमर का फीडबैक देखना है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये डेली का काम है, और इसे ज्यादा दिन नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अदरवाइज बाकी सब तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ करने ही वाले हैं, हम कर ही रहे हैं। तो अगर आपको डेफिनेटली वांट टू कम इनटू 1% ऑफ पीपल हु आर ग्रोइंग एट मैसिव लेवल, उसके लिए सबसे कम टाइम लगता है।
जिस स्टेट पर आज हम हैं, यहाँ पर रहने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा दिमाग भी यहीं लगता है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी यहीं पर है। बट इट्स लाइक कि जब आप हाईवे पे जाएं आते हैं, उस हाईवे पर गिने चुने लोग हैं, वहां पर बस रतन टाटा, अंबानी, शाहरुख खान जैसे लोग हैं, और यही लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। जी। कोई भी बिजनेस बिल्ड करना है तो सबसे पहले इन लोगों को फॉलो करना शुरू करिए, इन्हीं को सुनिए, इन्हीं से सीखिए। ये आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे आपके बिजनेस के माइंड में भी और ओपनली भी। मस्ट मस्ट शाहरुख खान बहुत अमेजिंग बोलते हैं। शाहरुख खान, अभी मैंने उनको लास्ट में मैंने कुछ सुना तो ही वाज सेइंग कि आई एम एनवी ऑफ पीपल हु डू नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि उनको वो आराम कर सकते हैं, वो हर काम को टाल सकते हैं। आई कैन नॉट डू दैट, चाहे मेरा मन करे या ना करे, मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए रोज सुबह उठ के बॉडी बिल्डिंग पे जाना ही पड़ता है। मैं जब भी शूट पर जाता हूँ तो मैं सबसे नालायक इंसान अपने आप को मानता हूँ वहां पर, कि मुझे कुछ नहीं आता, जो डायरेक्टर जैसा कहता है मैं चुपचाप से फॉलो करता हूँ। और हमारे साथ क्या, बाकी लोगों के साथ क्या होता है, वो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दे बिकम द स्टार, कि अब हम बताएंगे क्या करना है। क्या करना है। दैट इज व्हाई ही इज बादशाह ऑफ द एंटायर, बादशाह या इंडस्ट्री का बादशाह आज भी है। हम्म, रतन टाटा जी का आपका भी स्केड्यूल देखिए, अंबानी, मुकेश अंबानी का स्केड्यूल देखिए, इन लोगों को फॉलो करिए। अपने फोन में और इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप पे अगर कुछ देखना तो सिर्फ इन्हीं लोगों को देखिए, बाकी सबको अगले 6 महीने के लिए गायब करो कंप्लीटली। आपका बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एक्सपर्टिफाई पर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं ही। एक्सपर्टिफाई ने बहुत अच्छी जॉब की है यहाँ पर, कि उन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पर दोनों दोनों पार्टनर्स के लिए, एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के लिए भी और एक यूजर के लिए भी, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करा है जहाँ पर हम आराम से आकर डे टू डे डिस्कशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ड्रिवन है, सारे के सारे हमारे कंसर्न्स रिजॉल्व भी होते हैं, और एक डे टू प्रोग्रेस भी हम देख सकते हैं कहाँ पर है। जैसे तो बहुत आपने इजीली अवेलेबल है। हाँ, जैसे आपने बोला कि इट्स अबाउट एसोसिएशन, आई थिंक एक्सपर्टिफाई नाउ में यू कैन टॉक टू पीपल हु आर एक्सपर्ट। जैसे आपसे बात करना, अगर जिससे आप जिसको भी इतनी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग बिजनेस, चाहे वो नया हो, इट विल बी इजियर फॉर देम टू कनेक्ट विथ यू, चाहे वो कहीं पर भी हो। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, या Absolutely. So this time, अगर people who are sitting in this webinar or in anywhere in this world, they must only use app like Expertify for rest of their life. तो ये आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। सोशल मीडिया, पहली बात तो वो दे आर ड्रिवन, वो किसी ना किसी का बिजनेस कर रहे हो। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप कोई रील भी देख रहे हो, someone is earning money on it, but it's free for you? No. When anything is free for you, you are the product. यूट्यूब सिर्फ वॉच करने के पैसे देता है इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को, तो आपने जितना टाइम उस पर दिया, उसके पैसे उन्होंने उस कंटेंट क्रिएटर को दे दिए, और आपका टाइम हो गया, वो वापस नहीं आने वाला। उस 5 मिनट के लिए हम रील देखते हैं, बट वो कई बार 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, और वो एक हैबिट बनती है। बस हैबिट बनने से बचाना तो आपको डेली का 1-1 मिनट बनाने की, कैसे आपको कुछ एनहांस करें आपकी डेली डे टू डे लाइफ। टाइम वेस्ट मत करिए। तो दैट्स माय क्लोजिंग वर्ड्स। अपने गोल्स और विजन्स पर काम कीजिए। ऑलवेज स्टार्ट हैविंग अ लॉन्ग, very long vision and start living in it right now. Fake it until you make it. बिल्कुल। Thank you very much. Are there any questions or are we done? There are actually very questions, but time problem हो रही है। There are few more questions We have 9 regarding minutes. We can हाँ take it. जी, बस आई थिंक टाइम की प्रॉब्लम होगी। 6 बजे तक सेशन आई थिंक खत्म होने वाला है। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, let's see. I think I like this question a lot. How do you handle failure? Because I think investment business, it's Awesome. This is an awesome question, guys. Please, I request you start failing right now. Fail as fast as you can. अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, जितनी तेजी से फेल हो सकते हैं, प्लीज हो जाइए। लोग क्या करते हैं, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल, उसके बाद वो पूरी जिंदगी दोबारा कभी ट्राई नहीं करते। बट ट्रस्ट मी, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपने सिर्फ ट्रैक चेंज किया है। ये 95% लोगों का ट्रैक था जो बर्बाद लाइफ है मीडिया। मैं इसको लिटरली बर्बाद कहता हूँ। वो पैदा होते हैं, नौकरी करते हैं, और नए स्लेव पैदा करते हैं, वो भी नए स्लेव पैदा करते हैं, ऑल डाई। यहाँ पर 5% लोग, जब आप ट्रैक चेंज करने की कोशिश करते हैं 95 to 5%, तो क्या होता है, हमें नहीं आता इस पर कैसे चलना है, वी आर लर्निंग, तो वी फॉल।
और जितनी ज्यादा बार फॉल करेंगे, इस लाइक कि अभी पैदा हुए हैं तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा घसीटे जाएंगे, फिर गिरेंगे, चलेंगे। तो जितना आप इसमें चलोगे, आपको ये जर्नी आगे ही लेकर जाएगी। फेल फास्ट, जितनी जल्दी आपको सक्सेसफुल होना है, प्लीज फेल फास्ट, और एटलीस्ट हैव अ टारगेट कि मैं कम से कम 100 बार तो फेल जरूर होऊंगा। इस पे मैं आपने, बल्ब हमारी सबकी जिंदगी में है आजकल, कॉमन चीज है, लाइट है ना। आपको मालूम है थॉमस थॉमस एडिसन, राइट? कितना टाइम लगा था उसको एक बल्ब को इन्वेंट करने में? He It tried took a lot. 1000 times and he failed. Then he again tried for 3000 more times and finally he failed again. Then he tried again 3000 times and he failed. और जब वो 9000 बार ट्राई कर चुका था, तो एक दिन उसकी रात को उसके पड़ोसी ने उसको उठाया कि भाई तुम्हारी लैब में आग लग गई है। And he came out and he started laughing. Everyone was like, क्या इसको लगता है शॉक लग गया, राइट? पागल हो गया। लोगों ने पूछा क्यों हंसे, तुम्हारी लैब जल गई, तुम हंस रहे हो? He said कि इस लैब की वजह से मैं बल्ब इन्वेंट नहीं कर पा रहा था, तो इसमें सारे वो तरीके थे जिसकी वजह से मैं फेलियर हो रहा था। अब मैं सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। एंड ही अगेन ट्राइड फॉर 1000 टाइम्स। फाइनली द बल्ब वाज इन्वेंटेड आफ्टर 10,000 ट्राइज। बट वो 10,000 ट्राइज जब तक ये सस्ती रहेगी, वो बल्ब जलेगा। इसका क्रेडिट थॉमस एडिसन को मिलता रहेगा और इसके कर्म भी उसको मिलेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको फेलियर से डरिए मत, फेलियर को प्लीज एम्ब्रेस करिए, और जितने ज्यादा जल्दी फेल हो सके उतने ज्यादा फेल होते रहिए। जो दिमाग में आता है करते चले जाइए, बट हाँ कोशिश करिए ऐसे लोगों के पास रहिए जो आपसे बेहतर जर्नी में हो, आसपास वालों के साथ नहीं। वी ऑलवेज नीड अ मेंटोर, वी ऑलवेज नीड अ टीचर। पैदा होने के बाद हमारे पास 2 टीचर थे, माँ बाप, देन स्कूल में, देन कॉलेज में, देन ऑफिस में। Do not think we can do business our own self. No, we cannot do that. We really need help. We really need to learn it. We all need to learn it. Business is a very vast kind of product and learnings. And unfortunately, इंडिया में इसको पढ़ाया नहीं जाता है। सिर्फ कुछ गिने चुने कॉलेज है जो क्लास 1 MBA कॉलेज है, वहां आप जाकर सीख सकते हो, या फिर if you come from a business background. So please. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ लवली सेशन, बहुत बढ़िया था। और जस्ट लेटिंग एवरीबडी नो कि यू कैन रीच आउट टू सौरभ, मिस्टर सौरभ भारद्वाज ऑन एक्सपर्टिफाई नाउ, अगर कुछ भी डाउट हो। अगर इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से रिगार्डिंग हाउ टू रीच यू, प्लीज let every audience know. For how to reach me, so I'm always sorry to interrupt. You can also talk about your book. आपकी बुक भी आप अपनी बता सकते हो. People would be interested, I'm pretty absolutely sure. Yes. So I've written a couple of books. One is on the leadership, and one is on the anger management. There are a couple of more. I'll share those links in Expertify, and I'm available as a coach in Expertify. My profile is there with the name of Saurabh Bhardwaj or Coach Saurabh as well. You can always reach out to me for any kind of questions, queries, or any help you needed in growing your business, in growing your even if you're in career, you need work-life balance, you want to get more promotions, or want to get into a leadership role, or you are already into a leadership role and you want to expand, maybe make better teams, better outcomes, I can surely help you. You can always reach out to me in Expertify. Right? Thank you so thank much. You very much, Khushbu, and Expertify platform. It is an amazing platform. I actually liking it. I hope to connect. We hope to connect with you again. It was actually a very nice session. सीखने को मुझे भी बहुत कुछ मिला. It was actually very insightful for me as well. I thought I would be able to share a lot, but yeah, I cannot. I could not. That's what I'm saying. ना पता नहीं चला time का बिल्कुल भी. Absolutely. जी. Thank you so much. Thank you very much. जी. Have a good evening, everyone. Bye bye.